Good morning, class. Welcome back to online class. So from today we will study the subject online. So this is your IT class, and in IT we were studying chapter number 25, health and safety at work. Today we have to start with the topic health and safety at work on page number 302. Okay, so let's read. Employers are duty bound to protect the health, safety, and welfare at work of all their employees as well as others on their premises, including temporary and casual workers, the self employed, clients, visitors, and the general public. Employers must also make adequate arrangement to provide first aid to the worker, etc. in case of an injury, and make arrangement to shift the injured to a hospital for proper medical care if needed. So, in this heading, we will study about the what the employer can do to provide better health and the safety of their employees at the workplace. Okay. So it is saying that the employers means the person under whom the persons are working. He is the employer, na? He has given job to the people. So the persons to whom he has given job, they are his employees. So the employer is bound to protect the health, safety, and welfare. Welfare means we can say in Hindi, kalyan, good beings of their person. Okay, so he is bound to protect the health, safety, and the welfare of his employees during the working hours at the work premises. So those employees may include casual workers or the temporary workers, self-employed, even the clients of the persons or the visitors or general public, whoever is entering into that working premises. The employer is bound to have the good health, safety, and work of all those people. बेसिकली इन दिस लाइन इट इज सेइंग कि जो एम्प्लॉयर होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोई भी उसके अंडर काम कर रहा है, चाहे वो कैजुअल वर्कर हो, टेम्प्रेरी वर्कर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इवन जो कोई भी उस वर्किंग प्रीमाइसेस में इंटर कर रहा है, ये उस एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है दैट ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज़ एंड द पीपल एंटरिंग इनटू दैट premises. So for doing this, employer must also make adequate arrangement to provide first aid to the workers, etc. है ना? So if he has to take care of the health and safety measures, so whatever he is required to do, he should do. Okay, the example is that he can manage first aid for the workers and other people entering there, and in case of any injury, and make arrangement to shift the injured to a hospital for proper medical care if needed. For example, if any mishappening is there, so it's his responsibility कि वो उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाए या फर्स्ट एड प्रोवाइड कराए या नेसेसरी जो भी उस समय पे जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हो वो उन्हें फिलफिल करे. तो टू मेक वेल वर्क प्लेस फेस safe, employers should provide first aid boxes at various places in the workplace, trained first aiders on all the floors of the workplace building, information about the nearest casualty department or local hospital, access to call for an ambulance, immediate assistance to casualties with illness or injuries caused by a specific hazards at work. So these are some points which are telling that what the employer should do, or what are the steps or measures which can be taken by the employer to protect the health, safety, and welfare of his employees and other person entering there. So the first point is that he should manage first aid boxes at the workplaces. He should provide training to some people for the first aids, and if that is multi-floor building, so there should be trained first aiders on every floor of that building, है ना. Next is there should be the information to each and every one that there is nearby any hospital or first aid center or casualty department. Okay, तो वहाँ पे जो लोग भी काम कर रहे हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँच सकते हैं. बिकॉज अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आसपास हो, आपके लिए नई जगह हो सकती है. तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इन्फॉर्म करे कि अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो आप जल्दी से जल्दी नियर बाय कौन से हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं या कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस मीन्स वहाँ पे फ़ोन कॉल फैसिलिटी होनी चाहिए.
हो सकता है सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो या कोई भी इशू हो सकता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे एनी इमीडिएट नीड में एम्बुलेंस को कॉल किया जा सके। लास्ट पॉइंट इज इमीडिएट असिस्टेंट टू कैजुअलिटीज़ with illness or injuries caused by a specific hazard at work। सो अगर वहाँ पे कुछ सीरियस इंजरी हो जाती है या सीरियस कैजुअलिटी हो जाती है तो इमीडिएट वहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। अब असिस्टेंट किस चीज़ में, फॉर एग्जांपल आग लग गई है तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे लोग आ जाएं ताकि उस फायर को कंट्रोल कर सके। कोई मशीन या बॉयलर फट गया है तो इमीडिएट वहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड हो, आग बुझाने वाले आ जाए। मींस उस हैपनिंग से रिलेटेड जो भी आप रैपिड एक्शन ले सकते हैं वो सब फैसिलिटी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रीमाइसिस में प्रोवाइड करे। ठीक है। सो इन द क्रक्स इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि किसी भी वर्किंग एरिया में, किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, प्रीमाइसेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनकी हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एम्प्लॉयर की। इवन अगर कोई वहाँ पर विज़िट करने भी जाता है, उनके क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, कोई भी आता है तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एम्प्लॉयर की या ओनर की। Now the next heading is general precautions at workplace। Now these are the precautions और measures जिसको यूज़ करके आप उस mishappening से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। So here are some general precautions that you should observe while working in a factory, office, workshop or any other types of workplace। So let's see what are the precautions। Your safety is your personal responsibility। Always follow the correct procedures। Never take shortcut। सो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पे जो भी रूल फॉलो करने हैं, प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, उनको करेक्टली फॉलो करिए और never take any shortcut to do anything। okay, next is take responsibility and clean up if you made a mess। clean and organize your workspace। and also कि अगर आप किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपकी वजह से वहाँ पे कुछ चीज़ें बिखर गई हैं, कुछ गिर गया है, कुछ टूट गया है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। आपकी वजह से फ्लोर पर पानी गिर गया है, तो पानी गिर गया है सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको साफ़ करवाइए। क्यों? क्योंकि पानी गिर गया है तो आपको पता है पानी गिरा है, हो सकता है बाकी किसी को ना पता हो तो स्लिप करके कोई भी गिर सकता है। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर आपकी वजह से वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक इट फिक्स। ओके, नेक्स्ट इज इंश्योर अ क्लियर एंड ईजी रूट टू इमरजेंसी एग्जिट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, so ensure the easy route means the shortcut method for skipping out of that place। जहाँ पे भी ये मिसहैपनिंग या एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ से आप जल्दी से खुद भी निकल सकें और दूसरों को भी निकाल सकें। फॉर एग्जांपल इन द बसेस देयर इज़ ऑलवेज एन एमरजेंसी विंडो और एमरजेंसी गेट गिवन। उसको हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं बट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वहाँ पे मेंशन होता है कि आप इसे ब्रेक कर दीजिए, आप इसको पुश करके खोल लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। तो वहाँ पे वर्किंग प्रीमाइसेस में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप भी इनिशिएट करिए कि उस जगह से जल्दी खुद भी आप एग्जिट हो सकें और लोगों को भी इमरजेंसी एग्जिट करा सके। नेक्स्ट इज़ बी अलर्ट एंड अवेक ऑन द जॉब। बी अटेंटिव एट ऑल टाइम्स टू योर वर्क सराउंडिंग। सो ज़रूरी नहीं है कि सबका काम सेम हो। किसी का बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस होता है, किसी का बस बैठ के करने वाला काम होता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका काम क्या है। और ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑन योर ड्यूटी इट्स मैंडेटरी कि आप हमेशा अलर्ट रहें। हो सकता है आप किसी मशीनरी की फैक्ट्री में काम कर रहे हों जहाँ पे रनिंग मशीनरी हो, वहाँ पे कपड़े फंसने का या कुछ भी होने का, करंट लगने का, शॉक लगने का डर हो। सो ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेक ऑन योर जॉब एंड ऑल्सो बी अटेंटिव व्हेन यू आर वर्किंग। नेक्स्ट, व्हेन इन डाउट कॉन्टेक्ट योर सुपरवाइजर और मैनेजर फॉर इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और ट्रेनिंग। इवन इफ़ यू आर हैविंग डाउट कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड यू आर हैविंग स्मेल ऑफ समथिंग बर्निंग, सो इट जस्ट अ डाउट। सो क्लियर दैट डाउट। उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि क्या वो जो स्मेल आ रही है कहीं वो
सच में कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ या कुछ जल तो नहीं रहा है. If there is something like this, then contact your supervisor immediately and take the necessary precautions, instructions. Okay, and never take risk when it comes to safety. So when we are talking about the safety, you are always told to be alert and active, so never take the risk. Like if you are told to wear a particular type of dress or jacket during the working hours, so then don't act like कि नहीं हो जाएगा. When it's come to safety, always be attentive and follow the rule. Obey safety signs, stickers and tag. Safety signs, stickers, जैसे कोई डेंजरस एरिया होता है तो वहाँ पे स्टिकर्स मेंशन होते हैं. जैसे पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फायर से एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट इन केस आग लग सकती है. सो अगर ऐसे किसी वर्किंग एरिया में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ के साइंस, स्टिकर्स एंड टैग्स को फॉलो करिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ना. सो जब आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होता है. नेक्स्ट, टेक शॉर्ट ब्रेक्स व्हेन यू कीप अप अ रिपीटेटिव मोशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड सिट, स्टैंड और वॉक विद गुड पोस्चर. सो अगर आप कंटिन्यूसली सेम काम बहुत टाइम से कर रहे हैं तो आप उसके बीच में शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, टहल लीजिए इन द गुड पोस्चर, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए. बिकॉज फॉर द लॉन्ग आवर यू आर वर्किंग इन द सेम पोस्चर और सेम पोजिशन ना. सो इट्स बेटर टू टेक शॉर्ट ब्रेक. Next is report serious injuries immediately to a supervisor and get emergency assistance. So in case of any serious injury, report your supervisor and get the assistance, like get first aid or required emergency assistance. That depends on the situation. Next, keep things in perspective. Hazards may be limitless, so focus on the most likely risk first. Cuts, muscle strains and sprain may be more common in your workspace, so focus on preparing for them rather than preparing for a flood or snake bite. So perspective, please underline the term, and perspective means viewpoint. Okay, so it is telling that keep your viewpoint very straight and clear. Like hazards are here, some mishappening, they can be limitless, from the small cut to the bursting of the boiler. So focus on the frequent happening risk, like cut, muscle strain, sprain. So always be prepared for the frequent mishappening rather than being prepared for the flood, earthquake, snake bite और any such कभी कभी होने वाले इंसिडेंट. मतलब हमें इनके लिए भी प्रिपेयर रहना है, बट जो ज़्यादा होता है हम उसके लिए पहले प्रिपेयर रहेंगे, है ना. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क एज अ टीम फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी. दिस हेडिंग वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. दैट्स इट फॉर टुडे. Please repeat this chapter. Those students who were not present in the class, they have to study this chapter from starting. If any problem is there, you can ask me. I'll re-explain the chapter. So thank you. Have a nice day.